یقیناً ایک زمانہ میرے بندو تم پر ایسا تھا تو تم کچھ بھی نہیں تھے، صرف اللہ تھا، باقی تو سب بنایا گیا ہے، کچھ پہلے کچھ بعد میں۔ بنانے والے نے اس کے اندر چند بنیادی خامیاں رکھی ہیں۔ ایک تو موت ہی ہے کہ یہاں رہنا نہیں، چلے جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتا ہے، مرد ہو یا عورت، کان الانسان عجولا، یہ انسان جلد باز بہت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ غصے والا بہت ہے، لڑائی جھگڑے بڑے کرتا ہے۔ اب بنانے والا ہی بتا رہا ہے نا، تو لہٰذا وہ تو بے خطا ہوگا۔ میری بات تو تولا جا سکتا ہے، غلط ہے صحیح ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو تولا نہیں جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ ناشکرا بھی بہت، تھوڑا سا جھٹکا دے دوں تو پچھلے سارے احسان بھول جاتا۔ اور دنیا موٹر وے نہیں ہے، یہ ہے ٹوٹی ہوئی سڑک، اور اس میں بھی آگے جگہ جگہ سپیڈ بریکر لگے ہوئے ہیں۔ یہ اسی طرح ہی طے ہوتی ہے۔ وہ ایک آگے زندگی آ رہی جس میں اللہ ہر رکاوٹ ہٹا کر ہر آنے والے لمحہ، سیکنڈ، گھنٹہ نہیں، دن نہیں، ہفتہ نہیں، سال نہیں، ہر سیکنڈ کے اندر جو پچھلا سیکنڈ گزرا ہے اگلے سیکنڈ میں اس سے کروڑوں گنا زیادہ لذت اور خوشی ڈال دے گا۔ پھر اس اگلے سیکنڈ آئے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا، چونکہ نہ اللہ کی ذات کی کوئی حد ہے، نہ اس کی عطا اور خزانوں کی اور دینے کی کوئی حد ہے۔ وہ اپنے دینے میں، وہ اپنی جب ذات میں لامحدود ہے تو دینے میں بھی لامحدود۔ تو ہر آنے والے لمحہ سیکنڈ، اس میں اللہ تعالیٰ پہلے سے لذت کو زیادہ کر دے۔ اور ابھی حدیث یاد آئی کہ ایک جنتی ایک جگہ بیٹھا ہوگا، یوں ایسے سامنے کوئی چیز، اس کے کوئی منظر ہوگا، اس کی وضاحت نہیں، کہ دیکھ رہا ہوگا جو کچھ اللہ نے اس سے دیکھ رہا ہوگا۔ وہ جہاں بیٹھا ہوگا صرف وہیں دیکھنے میں وہ ایسا گم ہو جائے گا کہ اس کو وہاں ہزاروں سال گزر جائیں گے، اسے ہوش نہیں ہوگا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ 70 کا لفظ آتا ہے، 70 سال گزر جائیں گے، اور عربی میں 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، 70 نہیں ہوتا، مطلب بہت زیادہ۔ جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں تمہیں 100 دفعہ تو سمجھایا ہے، تو اس کا مطلب 100 نہیں ہوتا، یعنی بہت دفعہ ہوتا۔ تو عربی میں 70 کا لفظ استعمال ہوتا، یعنی بہت زیادہ۔ 70 سال کا مطلب ہے بہت لمبا عرصہ بیٹھا ہوگا اور مزے لے رہا ہے، نہ بیوی، نہ کھانا، نہ دوست، نہ یار، نہ پینا، بس صرف دیکھنے کا مزہ لیے جا رہا ہے کہ ہر لمحے میں وہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ پھر دیکھنے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کو بار بار دیکھ لیں تو دوبارہ دیکھنے کا شوق ختم ہو جاتا، کیونکہ وہ بھی اپنے حسن میں ایک جگہ ٹکی ہوئی ہے، اس سے آگے اس کا حسن بڑھ نہیں رہا۔ کچھ میک اپ سے بڑھا دیتے ہیں تو وہ بھی ایک وقت تک ہوتا ہے، پھر وہ ریورس ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی کتنی ہی خوبصورت شکل ہو، کچھ عرصے بعد اس سے نظریں ہٹ جاتی ہیں، چونکہ اس میں آگے بڑھنا کوئی نہیں ہے۔ اب جنت میں کیا ہوگا کہ ادھر ہمارے اندر وہ بڑھا رہا ہوگا لذت کو ہر لمحے میں کئی گنا کر کے، اور ادھر جو چیز دیکھی جا رہی، کوئی درخت دیکھ رہا ہے، کوئی پتا دیکھ رہا ہے، کوئی پرندہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہر دیکھ رہا ہے، کوئی بادل دیکھ رہا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے اندر بھی اللہ ہر لمحے میں پہلے سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورتی بڑھا رہا ہوگا۔ بلکہ ایک اور حدیث یاد آئی کہ خامد اپنی بیوی کو یوں دیکھے گا، پھر ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھے گا، ایک سیکنڈ میں ہو نا، کہ یوں نظر پھرا کے پھر یوں دیکھا، تو اس کی بیوی اس کی نظر میں پہلے سے 1000 گنا زیادہ حسین ہو چکی ہوگی، اور بیوی نے یوں دیکھا اور یوں اپنے خامد کو دیکھا، بس اتنا، نظر یوں گئی، ایک سیکنڈ سے بھی کم ہے، تو خامد بیوی کی نظر میں کئی 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا ہوگا۔ تو اب اگر وہ صرف ایک دوسرے کو بھی دیکھتے رہیں تو لاکھوں برس بیٹھے رہیں، دیکھنے کی لذت ختم نہیں ہوگی، چونکہ چیز بڑھ رہی ہے۔ اور یہاں چیز جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ آ کر ٹک جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ نیچے جانا شروع ہو جاتی، زوال کی جگہ، مٹ جانے کی جگہ۔ تو ان کے ایک منظر ایسا ہوگا کہ آدمی اس میں گم ہو جائے، وہ اللہ نے وہ ٹھکانہ بنایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرا بندہ ایک ہی جگہ میں گم ہو گیا، اسے کوئی اور بھی نظارہ کراؤ بھائی، تو اللہ کی طرف سے آئے گا،
वैसे कोई और चीज़ भी दिखाओगे तो एक में ही गुम हो गया। तो उसके वो यूं बैठा होगा तो उसके कंधे पे यूं आके कोई हाथ मारेगा तो ऐसे मुड़ के देखेगा तो एक लड़की खड़ी होगी जिसके 100 जोड़ों में उसका पूरा जिस्म में से सूरज की तरह चमक रहा होगा, तो वो उसके लिए नई होगी। तो वो पूरा उसकी तरफ यूं मुड़कर उसको देखेगा तो वो कहेगी अमाला का फीना मिन रग़बतिन, आपको मेरी कोई रग़बत है, मेरा कोई शौक है या नहीं? वो कहेगा क्यों नहीं, तुम हो कौन, कौन हो? तो वो कहेगी अना मिन अल्लवाती क़ाल अल्लाह तआला वलदैना मज़ीद, मैं उनमें से हूँ जिनके बारे में तेरे रब ने कहा था तुम्हें दुनिया में कि जब तू आ जाएगा और एक दफ़ा मैं तुम्हें दे दूंगा जो देना है, वो फिर मेरा एंड नहीं होगा, उसके बाद फिर मैं देता ही जाऊंगा, देता ही जाऊंगा, देता ही जाऊंगा। तो मैं उनमें से हूँ जिनको अल्लाह ने तुम्हें और मज़ीद दिया है, उनमें से हूँ। क्योंकि जन्नत में जितना भी कुछ मिल जाए, जो ज़िंदगी चूँकि ख़त्म ही नहीं होनी, तो लिहाजा ज़रूरी है कि उसमें इंसान की राहत को हर लम्हे बढ़ाया जा रहा हो। तो अल्लाह ताला देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, ना उसके देने में कमी है ना इनके मांगने वाले। बल मांगने वाले एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे बंदियों से कहेगा आज मुझसे मांगो, क्या मांगते हो? कहेंगे अल्लाह मांगने की चीज़ ही कोई नहीं, हर शय से तूने दे दी, अब क्या मांगे? तो अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें आज अपनी शान का अता करूँ, तुम्हारे अमलों का नहीं, तो अपनी शान का। तो कहेंगे राजी हो जा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे राजी हूँ तो जन्नत में बिठाया, वरना लितर ना होते जहाँ दोज़ख दे तो राजी हूँ तो यहाँ बिठाया, मैं जन्नत के जूते खा। मांगो तो फिर सारे मांगना शुरू करेंगे यहाँ तक कि उनके तब सवाल ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहेंगे देखो मैंने तुम्हें कहा मेरी शान का मांगो, तो अभी तुमने बहुत थोड़ा मांगा, और मांगो। फिर वो अल्लाह से मांगेंगे, मांगते 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 फिर एंड हो जाएगा, कहेंगे या अल्लाह। तो अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी शान का नहीं शुरू हो, मेरी शान का मांग। तो तीसरी दफ़ा भाई तुमने क्या मांगा, तुमने क्या मांगा, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो फिर जोर लगा के, और दुनिया में हमारा जो ब्रेन है ये 5-6% काम करता है, बाकी फालतू पड़ा हुआ है। और जन्नत में अल्लाह सारा खोल देगा, सारा खोल दे। तीसरी दफा मांग 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 एंड हो जाएगा, कहेंगे अल्लाह बस, कहेंगे नहीं मांगो, कर नहीं अल्लाह बस, कहेंगे मांगो का, हमारी समझ में और कुछ नहीं आता। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदो अभी तो तुमने अपनी शान के मुताबिक नहीं मांगा, तो मेरी शान कहाँ है? तुम तो अभी अपनी शान के मुताबिक में नहीं मांग सके, लेकिन चलो जो तुमने मांगा मैंने वो भी दे दिया, जो नहीं मांगा वो भी दे। तो दुनिया तो ऐसे ही चलती है, इसमें अंधेरा भी आता है, उजाला भी आता है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, बीमारी भी है, सेहत भी है, परेशानी भी है, राहत भी है, ये पाँच साथ चलता है। पेपर हैं, सारे पेपर हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारा एक ऐप बताया, वकान अल इंसानों का पूरा ना शुक्रा पड़ा है। फिर अल्लाह ताला ने एक और बताया, वकान अल इंसानों कतूरा, बखील बहुत, जोड़ने का बड़ा शौक है इसका, जमा करने का बड़ा शौक। फिर अल्लाह ताला फरमाता है खुलक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, कमज़ोर बहुत। तो और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये चंद एक मैंने सिर्फ नमूने के लिए आपको अर्ज़ की। इन्नल इंसाना खुलिक़ हलूआ, हलू इज़ा मस्सहु शुर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहु ख़ैरु मनूआ, हलू जज़ू मनू कफूर कनूत कतूर और अजूर, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें बतलाई कि तुम्हारे अंदर ये फॉल्ट है। ये बताकर अल्लाह ना हमें एक बात समझाना चाहता है, क्योंकि हमारे साथ शैतान भी लगा हुआ है। अल्लाह ताला ये समझाना चाहते हैं कि मेरे बंदे ये तेरे अंदर बुनियादी कमियां हैं, तो देख अपनी मर्जी पे ना चलना वरना हलाक हो जाओ, अपनी अकल पे ना चलना हलाक हो जाओ। क्योंकि तुम्हारा बुनियादी फॉल्ट है कि तुम जल्दबाज हो, तुम गुस्से वाले हो, और तुम बखील हो, और तुम ना शुक्र हो, और तुम जालिम हो, ज़लूमन जहूला, तुम जालिम हो, तुम जाहिल हो, तुम बेसब्र हो, तुम नाशुक्र हो। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाए ना, तो वो आपको बता दे कि आपके टेस्ट रिपोर्ट ये है, ये है, ये है, तो आप परेशान होकर रखेंगे जी, पर अब मुझे इलाज बताएं मैं क्या करूं। एकदम आप तैयार हो जाते हैं कि अब ये मेरा इलाज करें, फिर मुझे कोई तरीका बताएं मैं कैसे निकलूं। वो कहता है ये खाना, ये नहीं खाना, ये टाइम की दवा, ये सौ की दवा। तो अल्लाह ताला ये सब कुछ हमें बता के औरतों में मर्दों में ये चीज़ें बराबर हैं। फिर कहा कि अब तुम ऐसा करो कि जो मैं कहूँ वो करो,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, जो मैं कहूँ वो कर दो, जिससे रोकूं उससे रुक जाओ, जिसका कहूँ उससे कर दो। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फिर मेरी तरफ से बशारत है कि अगर तुमने मेरे और मेरे रसूल को राज़ी कर लिया और उनके तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजार ली तो बस तुम उस जहान दोनों में कामयाब। तो एक बुनियादी नुक्ता अल्लाह ताला पता नहीं और क्या क्या समझाना चाहते हैं जो इस वक्त मेरे ज़हन में है कि अल्लाह हमें अपने ऊपर एतमाद से हटा रहा है। अपने इल्म पर न चलो, जो अल्लाह की तरफ से इल्म आए उस पर चलो। नज़र कुछ और देखती है, आसमान वाला कुछ और कहता है। मैंने 100 रुपया सूद पे दिया, वो मुझे 110 होके वापस मिला, तो 100 पाउंड पे 10 पाउंड मुझे इजाफा मिला, तो मेरे पैसे 110 हो गए। एक आदमी ने 100 में से 10 अल्लाह के नाम पे दे दिया, उसके 90 रह गए। दोनों अमाउंट सामने रखो तो ये 90 पाउंड है, ये 110 पाउंड है। अब मेरी नज़र कह रही ये ज़्यादा वो थोड़ा है, और अल्लाह की खबर कह रही यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, मैं सूद को मिटाता हूँ, घटाता हूँ और सदक़े को बढ़ाता हूँ। और इसके साथ अल्लाह के नबी की खबर, मा नक़त मालु मरिइन मिन सदक़ा, अल्लाह के नाम पे खर्च करने वाले का पैसा कभी नहीं कम हो सकता। फला तुम उख्तिम अलैहिन, मैं इन पे कसम उठाता हूँ, यानी जमानत देता हूँ कि जो अल्लाह के नाम पे खर्च करेगा उसका माल कम नहीं हो सकता। तो अब मुझे नजर आया है 110 ज्यादा है, 90 थोड़ा है। मेरे अल्लाह ने खबर दी है 90 ज्यादा है, 110। तो ये अल्लाह ताला हमारा ज़हन बनाना चाहते हैं कि जो तेरा रब कहे उस पे चल, जो अल्लाह का इल्म है उस पे चल, अपने इल्म पे ना चल, जो अल्लाह कहे उस पे चल। और चूंकि फिर अल्लाह डायरेक्ट तो आता नहीं, तो बीच में नबी को लाता है, वो जो अल्लाह और बंदे के दरमियान वासिता बनते हैं, वो अंबिया हैं। और हमारी ये लॉटरी निकली कि हमें जो नबी मिले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, जो सारे नबियों में सबसे अफजल, सबसे आला। अल्लाह ताला ने किसी नबी को अपना नाम नहीं अता फरमाए। अल्लाह ने अपने हबीब को अपने नामों में से 2 नाम दिए। अल्लाह अपने बारे में कहता है इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, तुम्हारा रब रऊफ है, रहीम है। और अल्लाह अपने नबी के बारे में फरमाते हैं बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, ये मेरे जो महबूब नबी हैं ये ईमान वालों के लिए रऊफ हैं, रहीम हैं। 2 नाम अता फरमाया, रऊफ रहीम, रऊफ रहीम। और अल्लाह ताला ने किसी नबी की कसम नहीं उठाई, अपने हबीब की कसम उठाई, लाअमरुक, ऐ मेरे महबूब तेरी जान की। अल्लाह ताला ने किसी के शहर की कसम नहीं उठाई, आपके शहर की कसम उठाई। वहादल बलदिल अमीन, इस शहर की कसम, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, जिस शहर में आप हों मैं उसकी कसम न उठाऊं तो और क्या करूं। मैं उसकी कसम उठाऊंगा कि आप उस शहर में मौजूद, आपकी बरकत से वो शहर भी बरकत वाला है, तो मैं उसकी कसम इसलिए उठा रहा हूं कि आप उसमें मौजूद। किसी की रिसालत पे कसम नहीं उठाई, आपकी रिसालत पे कसम उठाई। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, मुझे कसम है कुरान हकीम की, आप मेरे रसूल हैं। तो अल्लाह ने हमारी लॉटरी नहीं खा ली, अल्लाह ने हमें अपना नबी, अपना हबीब दे दी। जैसे मेहरबान शफीक के एक दफ़ा हज़रत आयशा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ तो करें। हज़रत आयशा सबसे महबूब बीवी, सबसे ज़्यादा मोहब्बत जिनसे, और जिनके सीने पे सर रखे हुए जान दी, और जिनके हुजरे में ही आपका अबदी क़यामत तक का आराम हुआ। या रसूल मेरे लिए दुआ तो करें। तो आपने कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा अअलनत, या अल्लाह आयशा के अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा, और जो छुप के किए जो ज़ाहिर किए वो सारे माफ़ फरमा। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुशी से ना ज़मीन पे लेट गई। तो आपने कहा आयशा बड़ी खुश हो रही हो? कहा क्यों ना, इतनी बड़ी दुआ आपने मुझे दी। कहा इन्नहा लदअवती लिउम्मती कुल्ल यौम, आयशा ये दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए रोज़ाना मांगता, तुम्हारे तो कहने पर तुम्हें दी ना, अपनी उम्मत के लिए मैं रोज़ाना ये दुआ मांगता, और उम्मत आने वाली क़यामत तक की नस्ल, उसके लिए मैं दुआ रोज़ाना मांगता। फिर आपने फरमाया अल्लाह ने हर नबी को एक ख़ास दुआ दी कि ये दुआ का तुम्हें हक़ असले मांगो। हर नबी ने वो दुआ का हक़ इस्तेमाल कर लिया, ख़त्म। अल्लाह ने मुझे भी वो दिया कि मेरे नबी मांग, मैंने कहा नहीं, या नहीं मांगूंगा।
آخرت میں جب تو جمع کرے گا نا میری امت کو، تو میں وہاں ان کی سفارش کے لیے یہ دعا کروں گا۔ تو میں نے اپنی دعا کا حق محفوظ رکھا ہے، میں اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا۔